Good morning, everyone. Myself, Krishna Kumar Singh, the accountancy teacher, and today I am going to start chapter number 3 of accountancy. Name is Accounting Principles. First of all, I will explain the meaning of accounting principles. Accounting principles are the rules of action or conduct adopted by the accountants universally while recording the accounting transactions. अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि अकाउंटेंट्स द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. Accounting principles are classified into two categories. One is accounting concept and other is accounting convention. अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है दो कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और सेकंड है accounting conventions. So I am going to explain first accounting concepts in the chapter of accounting principles. The first concept is going concern concept. As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise. It is on this concept that we record fixed assets at their original cost and depreciation is charged on these assets without reference to their market value. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम ये माना जाता है कि बिजनेस जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग हम एसेट्स की वैल्यू में हर साल वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे फॉर एज ए डिप्रिसिएशन और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ का अनुमान लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल, यदि हमने एक मशीनरी खरीदी है और हम इसके एस्टिमेटेड लाइफ को 10 ईयर मानते हैं तो हम इसकी कॉस्ट को खरीदी हुई प्राइस को 10 साल तक स्प्रेड कर देंगे ताकि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे अमाउंट का बर्डन ना हो और पूरे 10 ईयर्स तक इसके अमाउंट को रिकॉर्ड करें सिस्टमैटिक वे में. Next concept, consistency concept. This concept states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. This should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss and balance sheet of the different periods and draw important conclusions about the working of the enterprise. For example, a firm can choose any one of the several methods of depreciation like straight line method, written down method or any other method. But it is expected that the method once chosen will be followed consistently year after year. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में ये कहा गया है कि जो भी रूल हम फॉलो करेंगे, जो भी पॉलिसी हम फॉलो करेंगे वो हर ईयर में सेम पॉलिसी होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की सही प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए. फॉर एग्जांपल, यदि हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं जैसे कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, फिक्स मेथड, अगर हमने किसी एक मेथड को चुन लिया तो हमको ईयर बाय ईयर सेम मेथड का यूज़ करना है. हमको अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करनी है ताकि हमको सही नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन मिल जाए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. It provides more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis. In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, whether cash is received or not. Similarly, in expenses, they are recorded in the accounting period in which they assist in earning the revenue, whether the cash is paid or not, for the true financial position of the business. एक्रूअल कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का फॉर्मूला है. इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं.
इसके अकॉर्डिंग हमको कैश रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है, अगर सेल्स हुआ है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज़ हमने एक्सपेंस पेड किया है या नहीं किया है, अगर एक्सपेंस हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। जैसे अगर कैश सेल नहीं हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है तो भी वो रेवेन्यू के रूप में रिकॉर्ड होता है, और हमने कुछ पैसा पेमेंट करने से रह गया है तो वो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हमको सही फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हो जाए। तो एक्रूअल बेसिस में कैश मिला हो अदरवाइज़ नहीं मिला हो, अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। The next concept is business entity concept. According to this concept, business is treated as a separate unit from its owners. So business unit should have a completely separate set of books, and we have to record business transaction from firm's point of view, not from the point of view of the proprietor. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में फर्म को हमेशा ऑनर से अलग माना जाता है, और फर्म के नाम से ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और फर्म के नाम से ही सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर्स पार्टी को देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में ऑनर से बिजनेस को अलग माना गया है, और बिजनेस यूनिट को सेपरेट यूनिट के नाम से ही सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के बुक्स में। The next concept is money measurement concept. Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. An event, it may be very important for the business, will not be recorded in the book of the business unless its effect cannot be measured in terms of money. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में सारे ट्रांजैक्शंस को केवल मनी के टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे इवेंट भले ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपीज़ अमाउंट कैश लगा के, प्लस लैंड एंड बिल्डिंग भी है उसके पास, एक मशीनरी भी है, 2 टेबल 2 चेयर्स भी हैं, तो हमको कैश के अलावा वो सारी प्रॉपर्टी जो वो बिजनेस में लगा रहा है उसको मनी के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद ही बिजनेस में रिकॉर्ड करना होगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में सारे ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म्स में ही लिखते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 5 कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, और उसको अच्छी तरीके से डिटेल में बताया। ओके, थैंक यू।